के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए, हो झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। मुरली तेरी प्रीत है दिल की, देती अनुभव निराला, हो देती अनुभव निराला। जीवन ये लाए उजाला, पिए जो अमृत प्याला, पिए जो अमृत प्याला। मुरली की तान पे तेरे अतीन्द्रिय सुख हम पाए, हो अतीन्द्रिय सुख हम पाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली में प्रेम की गंगा बहती है, उड़ चले आओ वतन में, मीठे स्वर में कहती है, वरदान शक्तियाँ देने को बाबा बैठे हैं बाहें फैलाए। ओम शांति। परमात्मा भगवान कर ए धरा पृष्ठरे देहरे अवतरण करे गोटे साधारण अनुभवी वृद्ध देहर धारण करी आधार नहीं आम मानक सह अनुभव युक्त शब्द जहाँकि परमात्मा महावाक्य भगवान उवाच से ही है श्रीमद् भगवत गीता आउ ताकू ही आमे कहूचे आमे जानिले कि ज्ञानर मुरली जो शब्द रे भगवान का महावाक्यर शुणिबार आधार रे आम आत्मा मानकर स्वतः देह रूपी वस्त्र को भूलिबा सहज हो जाउची एवं आमे आत्मा स्वरूप स्थित हो जाउचे। सेथिपई आमे जहाँ शुणी आसिले जहाँ ए पर्यंत शुणिले ए सबु प्रजापिता ब्रह्मांकर देहर आधार रे भगवान जो शिक्षा देचंती जो ज्ञान देचंती तार किछि जे भली कि स्वर वर्ण आउ असल रे
ଆଜିଠାରୁ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭ। ତେବେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଦେହର ଆଧାରରେ ଆଉ ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦର ଆଧାର ନେଇକରି, ଯାହାକୁ ମୁରଲି ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦେହର ଆଧାରରେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଦେହରେ ଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦେହର ଆଧାର ନେଇ ଯେଉଁ ବାଣୀ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ବାଣୀ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତ ବାଣୀ କହୁଛେ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେତେବେଳେ ଦେହରେ ଥିଲେ, ସାକାରରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିକରି ଯେଉଁ ବାଣୀ ଶୁଣେଇଲେ, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ସାକାର ଦେହର ଆଧାର ନେଲେ, ତେଣୁ ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କାହାରିକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ? ଭଗବାନ ତ କହନ୍ତି ଜଣେ ମଣିଷର ଦେହରେ ଆସିକି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପୁଣି ଦେହାବସାନ ହବ। ତାପରେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାର ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାରି ଆଧାରରେ ଉଦୟ ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପାଳନା ପାଉଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ବତ୍ସଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଇନଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଥିଲେ, ଦୈବୀ ଦୁନିଆର ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଆସିବାର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଆସିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କି ଏ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ଏ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆସିବ, ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂସାରକୁ ଆସିବେ, ଦେବୀ ଦେବତା ବିଚରଣ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଦୁନିଆ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଶିକ୍ଷା ଆଧାରରେ ଦିନର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବାଠୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବନା ହେଇଗଲା, ଯାହାର ଭିତରେ ଆମ ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିବ, ତା ପାଇଁକି ବି ପ୍ରୟାସ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜାନୁଆରୀ 18ରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେଭଳି ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ଆପରେ କ'ଣ? ଯେମିତି ଗତକାଲି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ସଂସ୍କାର କରାଗଲା। ଯେମିତି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଧୁଆଧୁଇ ହୁଏ, ଗାଧୋଇ ସାରିକିରି ଭୋଗ ଲଗାଗଲା, ଏ ଆଶାରେ କି ସନ୍ଦେଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଯିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପରେ କ'ଣ କରାଯିବ କିଛି ମେସେଜ ନେଇକିରି ଆସିବେ। ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇକିରି ଦାଦି ହୃଦୟ ମୋହିନୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତଥା ଶିବ ବାବା ଗୁଲଜାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଏ ଯଜ୍ଞରେ ଏଇ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଲଜାର ଦାଦି କୁହାଯାଏ। ଗୁଲଜାର ଦାଦିଙ୍କ ଦେହରେ ଯିଏ ମେସେଞ୍ଜର ହେଇକରି ଯାଇଥିଲେ, ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ ବି କଲେ ଦେହରେ ଶିବ ବାବା ଆସିଗଲେ ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲେ, ବାବା ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଚାଲିଗଲେ? ସେଠୁ ଶିବ ବାବା କହିଲେ, ଆଉ ଜାଣନ୍ତିନି କି ଯିଏ ଦେହ ଧାରଣ କରିଛି ସେ ତ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନା। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁରୁଣା ହେଇଥିଲା, ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେଠୁ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁରଲୀରେ ତ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆମେ ଏକାଠି ଯିବୁ, ଏକାଠି ଆସିବୁ, ଏକାଠି ପୁଣି ରାଜ୍ୟ କରିବୁ,
ଆଉ ଏକାଠି ଯିବାର ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ, ଚାଲିଗଲେ ଯେ। ଶିବ ବାବା କହିଲେ ସେ ଶବ୍ଦ ସେ ବାକ୍ୟ ମୋର ଥିଲା। ଏବେ ବି ଶିବ ବାବା ଭଗବାନ ତୁମକୁ ନେଇକିରି ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିକିରି ହିଁ ସାଥିରେ ନେବ। ଯାହାକୁ ଆମେ କାଳର କାଳ ମହାକାଳ କହନ୍ତି, ସେ ଭୋଳାନାଥ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ରୂପ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି କି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇକିରି ଏକାଠି ଯିବେ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ଥିଲେ। ଶିବ ବାବା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସ୍ଥୂଳ ଲୋକରେ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥୂଳ ଲୋକରେ ଥିଲେ, ସାକାର ମଣିଷ ଲୋକରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କିଛିଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଧାରରେ ବି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେଉଥିଲେ, ଶକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ସେବାର ବିସ୍ତାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ଏ ସ୍ଥୂଳ ଲୋକରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବ ସେବାର ବିସ୍ତାର କେମିତି ହେବ। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ରହିକିରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ, ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରେଇବ, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରେଇବ, ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି କରେଇବ। ଆଉ ଏବେ ସେବାର ବିସ୍ତାର ହେବ। ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା କି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀଙ୍କର ଗୁରୁ। ଏବେ ଲୋକେ ବୁଝିଯିବେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି। এই ଆଧାରରେ ପରମାତ୍ମା, ଯାହାକି କାଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ସେଠୁ ପିଲାମାନେ ବ୍ରହ୍ମବତ୍ସମାନେ ପଚାରିଲେ, ବାବା ଆମେ ମୁରଲି ପୁଣି ଶୁଣିବୁ କେମିତି? କହିଲେ ପାଠପଢ଼ା ସରିଗଲା। ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 18, 1969 ମସିହାରେ ଶୁଣିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ମନେ ଅଛି କି? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1936-37 ମସିହା ଠାରୁ 1969 ମସିହା ଯାଏଁ ଲଗାତାର ଭଗବାନ ଆସିକିରି ପିଲାଙ୍କର ପାଳନା ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମା କହିଲେ ଏବେ ରିଭିଜନ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଇକିରି ପିଲାମାନେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ କି ବାବା, କାହାକୁ ପଚାରିଲେ? ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ। ଶିବ ବାବା, ଆମେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶିପାରିବୁନି, କାରଣ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦେହରେ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଆପରେ କ'ଣ ଆଉ ଆସିବେନି? ଶିବ ବାବା କହିଲେ ହଁ ଆସିବି, ମିଳନ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ ତମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଜାଣିବ, ବୁଝିପାରିବ। ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଇକି ରହିବ। ଦାଦି ପ୍ରକାଶମଣି, ଦିଦି ମନମୋହିନୀ, ଯେ ପ୍ରକାଶମଣି ଦାଦି ବମ୍ବେରେ ଥିଲେ, ସେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାବା ରଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ 16ରେ ତାଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରଖେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଦିଦି ମନମୋହିନୀ ଯେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଆହ୍ଲାବାଦ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବି ଫେରି ଆସିଥିଲେ। କହିଲେ ଏଇ 2 ଜଣ ଯାକ, ଦାଦି ପ୍ରକାଶମଣି, ଦିଦି ମନମୋହିନୀ, ଏମାନେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ ରହିବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ କିଛି ଏଇ 2 ଦାଦିଙ୍କ ଠାରୁ, ଦାଦି ପ୍ରକାଶମଣି, ଦିଦି ମନମୋହିନୀଙ୍କ ଠାରୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବ। ଆଉ ମୁରଲି ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଅନେକ ତ ଲିପିବଦ୍ଧ ନଥିଲା, ଅନେକ ତ ଆଗରୁ କି ଆମେ ବୁଝି ବି ପାରିନଥିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦେହରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କୁହନ୍ତି ସେ ବି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଲିପିବଦ୍ଧ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ
ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ବି ପରମାତ୍ମା ଆସନ୍ତି ଲେଖିକିରି ଦୂରରେ ଥିବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାଳକ୍ରମେ ଲେଖିଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣିଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ଶୁଣିଲା ପରେ ଯାହା ବି ଯିଏ ନୋଟବୁକ୍ରେ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଥିଲେ ସବୁକୁ ମଗାଗଲା, ତାର ସଂକଳନ କରାଗଲା। ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ ଗୋଟିଏ ମୁରଲୀର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ସବୁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଲାନି। ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଆମରି ସେବାରେ ଆମ ସ୍ନେହରେ ଏବେ ବି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଉଭୟ ହୃଦୟ ମୋହିନୀ ଦାଦି ବା ଗୁଲଜାର ଦାଦିଙ୍କ ଦେହରେ ଆସି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଭଗବାନ ଗୁଲଜାର ଦାଦିଙ୍କ ଦେହର ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣାନ୍ତି ତାକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବାଣୀ ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହାବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହାବାକ୍ୟର ବି ରିଭିଜନ ଆମେ ଆମ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଧାମ, ଆତ୍ମାର ଗୁଣ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୁଣ, ଏ ସମୟର ମହତ୍ଵ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର, କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ, ତିନି ଲୋକ, ଏ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିଲେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଭଳି କିଛି କୋର୍ସ ଭଗବାନ କରାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମହାବାକ୍ୟରେ ଏ ଜ୍ଞାନର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଥିଲା, ଯାହା କାଳକ୍ରମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚିତ୍ରର ଆଧାର ନେଇ, ଅନୁଭବର ଆଧାର ନେଇ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଚିତ୍ର ସେଟ୍ ନେଇ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଚିତ୍ରକୁ ବୁଝାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଜ୍ଞାନର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଡାଇରେକ୍ଟ ମହାବାକ୍ୟ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ବାଣୀ ମୁରଲୀ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନିତ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଗବାନ ଏଇ ଅଲୌକିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ, ସେ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନର ବିଧିର ବି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦିଅନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ, ଯୋଗ କରିବି କହିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ଆସିଯାଉଛି। ମନେ ପକେଇବା ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଳନ କାହା ଆଧାରରେ ମନ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଲେ ମନ ହେଲା ତାର ଆଧାର। ତେଣୁ ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ମନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୋଉଠି ଲାଗି ଆସିଛି, ସେ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବା, ତାକୁ ହିଁ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଯୋଗ କ'ଣ, ୟାଦ, ମନେ ପକେଇବା, ସରଳ ଶବ୍ଦରେ କହିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ରାଜଯୋଗର ବିଧି ନିହିତ ଅଛି। ତୃତୀୟ ହେଲା ଏ ଜୀବନରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା। ଦେବୀ ଦେବତା ହବା ପାଇଁ ଆମ ଆଚରଣରେ ଦିବ୍ୟତାର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣା, ଯାହାକି ଏଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ତୃତୀୟ ସବଜେକ୍ଟ, ଏ ଶିକ୍ଷାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ଏଇ ଜ୍ଞାନର ମୁରଲୀରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବା, ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ଭଗବାନ କିଛି ଧାରଣ କରିବାର ଇସାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୋରସେ ହସିବାନି, ଜୋରସେ ଚାଲିବାନି, ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମ୍ୟାନର ଆମ ଗୁରୁଜନମାନେ, ଆମ ମା ବାପା ଘରେ ଶିଖାନ୍ତି, ସେମିତି ये सत बाप
से आम बापा सत्य बाप परमात्मा सत्य कह जाए ना, गॉड इज ट्रुथ। से सत्य बाबा, सत्य शिक्षक, सतगुरु। तेणु बापा है बापा मार रूप में मैनर शिखाती, शिक्षक है ज्ञान दियंती, आउ सतगुरु हिसाब से सद्गति दियंती। तेणु दिव्य गुणर धारणा, कहा रागिबानी, शांत स्थिति रे रहिबा, हर्षित मुख रहिबा, ज्ञानर धारणा आधार रे संतुष्टता को कायम रखिबा, ए सबु कथा भगवान आमको शिक्षा दियंती। चतुर्थ है सेवा। जिते बड़े आमे ए शिक्षार आहरण करती, ईश्वरीय ज्ञान आम बुद्धि ज्ञान को धारण करे, भगवान का सह मिलन हुए, से स्नेहर सागर, शांतिर सागर सह संबंधर अनुभूति रे आम मन तृप्त हो जाए, आम हृदय भरपूर हो जाए, आम हृदय रे संतुष्टता आसी जाए। आ से समय रे आमर जो भरपूर स्थिति, से समय आमको कौन अनुभव हुए कि मु बड़ भाग्यवान, भगवान कर ठारू एते उच्च प्राप्ति पाउची जहाँकि भगवान कर सबु संतान को मिलवा आवश्यक अच्छी। आमे गाई आसीथिले न वसुधैव कुटुंबकम, आउ एबे सतरे भगवान को जेतेबेले आमे बाबा बोली स्वीकार करछे, तांको सर्व संबंधर अनुभव करि पारुछे, सेतेबेले ए विश्वर प्रत्येक आत्मा का सहित आम संबंधर अनुभव होछि। समस्ते मोर कई पचारती ना, ब्रह्मा कुमारी भौणी मैंने आपण मैंने घर छाड़ी आसी, आम अनुभव कहे आमे घर छाड़ीनु, आमे ये विश्व को गोटे घर अनुभव करुचु। ये विश्वर रचयिता भगवान जितेबेले मोर, ये विश्वर प्रत्येक आत्मा मोर। तेबे जितेबेले मते शांतिर अनुभूति हैला, मु अशांतिर ज्वाला को चाखीछि, मु स्नेहर अभाव कौन जानी, दुख को अनुभव करिछि। आ जेतेबेले ए हृदय तृप्त हेछि, सुखर सागर, शांतिर सागर, स्नेहर सागर, ज्ञानर सागर सानिध्यर अनुभव करिकरी, तेबे स्वाभाविक इच्छा हुए कि समस्त भोकिला आत्मा का सहित ये परमात्मा प्रसाद को बांटिबा पाएंगे। तेणु ताहा ही हैला सेवा। सेवा भी हमें कि आकार रे करिबा, सेवार आधार कौन, सेवार माध्यम कौन कहा जाए, मन, वाणी और कर्म। भगवान जो ज्ञान दौरान ताकू जेते बुद्धि रे धारण करिबा, मन तृप्त हब, आउ ये मन जेते शांत रहिबो, आउ ए संकल्प रे स्थिर रहिबो कि मु शांत स्वरूप आत्मा, शांतिर प्रकंपन मोठारू बहुत दूर दूर पर्यंत जाई परिबो। मु जेते समय ए संकल्प को स्थिर रखि परिबी, से स्थिति रे रहिबी, सेते दूर दूर पर्यंत शांतिर प्रकंपन ए प्रकृतिर प्रत्येक तत्व को स्पर्श करने सह मनीष आत्मा पाखरे पहुँचब। केते दूर रे थिबा अशांत आत्मा को भी शांतिर टिके स्पर्श होकरी पुणी शांति पाइबा आशा रे से पुणी जागृत हो। केते दुख रे निष्पेषित होता आत्मा को भी पुणी शांति और सुखर प्रकंपन बंचिबा पाई, सुखर अन्वेषण पाई, सुखर प्राप्तिर आशा रे पुणी आगे चलिबो।
तेणु ये मन द्वारा आमे अनवरत सेवा करिवार सुजोग अछि। द्वितीयटी है बाणी आधार हाट मध्य ब्रह्मज्ञान नहीं जोठी आवश्यक पात्रता देखिके भगवान कहती नबज देखकर आवाज करो जमी नाड़ी देखिकी डॉक्टर जानती ए पेसेंट रो बेमारी कौन आपको कौन औषध दबा दरकार सेमती से वैद्यनाथ कहती जो आत्मा जो आसूची तार जो प्रकार भोक अच्छी सेतिकी शुण से जे आसिले बा चाहिए बा कौन स्थान रे किछि प्रवचन कार्यक्रम है बाणी आधार रे सम्यक ज्ञान जहाँकि आत्मा भितरे ए भोकर जागृत करे पारे एवं परमात्मा अनुभूति करबा पे सुजोग दे पारे। तृतीयटी है कर्म जो शिक्षा भगवान देइछंती ताको जेतेबेले जीवन रे धारण करछे आम आचरण रे से शिक्षा धारण दिव्य गुण रहुची आम संस्पर्श रे आसुथुबा परमात्मा संतान माने हे पारे आम घरे आम कार्य क्षेत्र मानकरे ए समाजर कौन सी क्षेत्र रे आमे राजयोगी परमात्मा शिक्षा को ग्रहण करुथुबा विद्यार्थी किंतु आमे ये समाजर जड़े साधारण मनीष आम संस्पर्श रे आसुथुबा भाई भौणी माने जेतेबेले आम मानकर चाली चलन रे आम मानकर कथबार्ता रे आमर व्यवहार रे दिव्यता को अनुभव करती सहैवार शक्ति धैर्यर शक्ति अनुभव करि पारंती सेतेबेले सी आमर निकटतर हे भगवान कर निकटतर हवा संभव हो जाए। कर्म द्वारा परमात्मा पर्यंत पहुँचेबार सेवा। द्वितीय आम ए प्रकार भी कहती तन मन धन ये शरीर को परमात्मा का सेवारे परमात्मा का स्मृति रे यदि आम घर भी ओळौचे कर्मर कुशलता आसुची योग कर्मसु कौशलम तेबे घरर वातावरण रे भी शांति आसुची मु शांतिर सागरर संतान शांत स्वरूप आत्मा पवित्रतार सागर संतान पवित्र स्वरूप आत्मा जेमती भगवान का सानिध्य रे पवित्रतार सागर सानिध्य रे मो मनर आबिलता मो बुद्धिर खरा मो बुद्धि स्वच्छ हो जाउची मो आबिलता नष्ट हो जाउची मोर अशुद्ध संस्कार परिवर्तन हो जाउची से पवित्रतार सागर स्मृति रे ए संसार रो मो अस्वच्छता को अशुद्धता को स्वच्छ करिबारे सफा करिबारे न्यस्त रही तन द्वारा हाथ रे काम करुची मन रे परमात्मा स्मृति मो काम रे दिव्यता आसी वातावरण रे परमात्मा कर अनुभव हो पारुची। मन द्वारा जहाँ में चर्चा कले मनर संकल्प द्वारा तरंग द्वारा बहुत दूर थिबा आत्मा पर्यंत आमे ए सेवा करि परिबा। धन द्वारा गोटे है स्थूल धन आमे जहाँ अर्जन करती जिते बड़े आमे इटा मोर बोली भाभी दियंती मु मन इच्छा जहाँ करी किंतु जिते बड़े मु निजको बुझीगली कि मु परमात्मा समर्पित भगवान मोर अभिभावक भगवान मोर बापा भगवान मोर माँ भगवान मोर जीवन साथी तांकर सहयोग मु जहाँ करि पारिली एटा प्रभुंकर देन तेणु तांकर इशारा रे से जेमिति कहिबे तांको मु जदि सेवा कार्य रे लगेबी प्रभु को आज्ञा रे से धन सफल हब से धन अनेक आत्मांकर कौन सी भी कार्यक्रम रे आमे धनर सहयोग दे ये परमात्मा का इशारा क्रमे
सेबारे सफल करिपारिबा। खाली स्थूल धन नुह, वास्तव में ये समय भी गोटे धन। जदि आर सदुपयोग करी आमे परमात्मा कर सेबारे लगेबा, आम थॉट एनर्जी संकल्प भी गोटे धन, आम निश्वास भी गोटे धन, आम शारीरिक शक्ति भी धन। ये सब को परमात्मा का महावाक्य आधार रे तांकर आज्ञा अनुसार जदि आमे व्यवहार करती, सद्व्यवहार करती, ताहा आमर सेबारे विनियोग हो जाए, सफल हो जाए। सेथिपाई एठी कहा जाए कि ए जीवन को आमे सफल करुचे, जीवन को काहाको देइनु, जीवन को भगवान के पाखरे अर्पण करी, भगवान को जीवन साथी बने करी ये अर्पणमय जीवन रे जीवन को सफल करिचे। ए निश्वास को परमात्मा का स्मृति रे सफल करुचे। आउ ए समय को जो समयटा आमे अଯଥା काम रे लगे दे थांते, से समय को भी परमात्मा का इशारा रे भगवान कहते तांका स्मृति रे रह, जहार आधार रे वातावरण पावरफुल हबो, जहार आधार रे अन्य आत्मा को शक्तिर अनुभव हबो, जहार आधार रे अन्य आत्मा मान को शांतिर अनुभूति हबो, सफल होछि। सेथिपाई आमर दिनचर्या को मध्य बांटी दिया जाए। जीवन शैली रे अलौकिकता आनिबार शिक्षा भगवान देछन्ति। तेबे भगवान को महावाक्यर कियदंश आमे शुणिबा। से भगवान साकार ब्रह्मा द्वारा जो बाणी शुणी थिले, जार रिविजन रे भगवान कर प्रथम शब्द ही जहाँ हमको आकर्षण करे और बोध हुए, अनुभव हुए कि ये सही मुरली, जहार आकर्षण रे गोपी माने शुद्ध बुद्ध भूलिकी धाई आसुले। आ से शब्द आम भीतर समस्त आबिलता को धोई दिए, ये देहर अभिमान रु आमको दूरे दिए, देहर वस्त्र रु मुक्त करी आत्मा परमात्मा संगर सुख बोध करे। प्रथम शब्द है मीठे बच्चे तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में हो। भगवान जो हमको पढ़ौचंती, भगवान कहते ये पाठशाला, यह सत्संग भी है। ये सतबा सदगति दबाई सत शिक्षा दौचंती, ये सत शिक्षा लेने वालों की संगठन है, तो आपको सत्संग भी कहा जीव। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। किए आम साथी रे वर्तमान सत बाप आमर सांगरे जे आमको ए दुनिया रो, ये कलिजुग दुनिया रो पारी करनोचंती। प्रत्येक दिन बाणी रे जितेबले ब्रह्मा बाबा थिले सेतेबले तो आजिकाली भलिया गीत बना ही नथिला। आजिकाली ब्रह्मा कुमार भाई भौणी माने केते गीत लेखुचंती, अनुभव आधार रे गाउचंती, सिंगर्स मान को द्वारा गीत किछि रेकॉर्डेड हेकी रोची। सेतेबले पुराना सिनेमा गीत भक्ति गीतार आधार नहीं कि तार अलौकिक अनुभव करा जाउतिला। आजिर बाणी रे गीत अच्छी, इस पाप की दुनिया से ले चलो कहीं और। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ है अहम आत्मा शांत स्वरूप, मो आत्मा शांत स्वरूप। परमात्मा कहते ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, गीत बजला ना, गीत सुन लो। किसको पुकारते हैं कि इस पाप की दुनिया से ले चलो कहीं और? कहा को कहूच, कहा को डाकुच कि केते मते नहीं जाओ बोली कहा को कहूच? भगवान को कहूचे ना,
तो बाबा कहते बाप को, बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीवात्माएं सब कलयुगी है, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। यही भली शब्द रे परमात्मा कहती, बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई नहीं जानते हैं। कि जानते कौन से स्पष्ट हमको न कला पर्यंत ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप। बेहद माने हद माने सीमित, बेहद माने असीम अर्थात सर्व आत्मा कर पिता, बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना, ये विशाल रचना को रचनार आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। आत्माएं जहाँ रहती है वह है ब्रह्म महतत्व, जहाँ सूर्य चांद आदि नहीं होते हैं। ये भली भगवान ज्ञानर स्पष्टता देकरी शेषरे बाणीर अंत करांती। पुणी यही भलिया ही शब्द रे कि ये बना बनाया ड्रामा है। सृष्टि चक्र गोटे ड्रामा, एक जैसा पाठ कोई का हो नहीं सकता। केड़े विचित्रता, एड़े बड़ा दुनिया, एड़े बड़ा सृष्टि, ये 800 कोटि प्राय मनीष आत्मा अच्छी, परमात्मा कहते ये सब का पाठ एक जैसा पाठ कोई का हो नहीं सकता। इनको कहा जाता है कुदरती बना बनाया ड्रामा। इनमें भी बनावट बहुत है। ये जैसे नेचुरल बनी बनाई ड्रामा। जो चीज रियल होती है वो खत्म भी होती है। फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। ड्रामा 5000 वर्ष ये सर पुणी 5000 वर्ष पर यहाँ रिपीट भी हम ये रियलिटी अनुभव करवा। चित्र आदि कोई भी रियल बने हुए थोड़े ही है। ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष बाद तुम देखेंगे। ए पर्यंत आमे भक्ति रे भी ब्रह्मांकर विषय शुणीचे, ब्रह्मार चित्र देखीचे। शिव बाबा कहते से कौन रियलिटी? एबे जो ब्रह्मार चित्र देखुच पुणी 5000 वर्ष पर देखिबो। इस ड्रामा के राज समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। भगवान हम बुद्धि को ये सूक्ष्म ज्ञान देके विशाल करूचंदी। अब बुझीबा पे विशाल बुद्धि दरकार। और कुछ न समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो। यदि किसी बुझी होनी गोटे कथा मन रख, कौन? एक शिव बाबा दूसरा न कोई। मोर मु आत्मा, मोर के एक शिव बाबा दूसरा न कोई। यह आत्मा ने कहा बाबा हम आपको ही याद करेंगे। बाबा मोर के ही नहीं, मु आपण को ही मन पकेबी। ये तो सहज है ना। इतने गुड़े शिक्षा पर एटा तो सहज कथा ना। हाथों से कर्म करते रहो, बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। एटा भी आप सहज काम कह देले। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति, मीठे मीठे पुणी हमको मिठास देखरी मीठा खुएला भलिया भगवान को मोर ए मिठास शब्द आम भीतर से मिठास से मधुरता जागृत कराए। तो सिकी लदे माना बहुत दिन है मोठू बिछुड़ी जाइथिबा मो संतान माने पुणी फेरी आछंदी मो कोल को। तो हजिला रत्न खोजी पाई थी जहाँ को। तो सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता, से आमर माँ भी से आमर बाबा भी। किंतु ब्रह्मा बाबा का देह रे शिव बाबा जिते बड़े आसचंदी, शिव बाबा कहते कि ये तुमर माँ तुमको पालना दूची। आत्मार पिता परमात्मा दुई जन जाक गोटे देह अच्छी। मात पिता बाप दादा का, बाप दादा पुणी किए? शिव बाबा आत्मा कर बापा। और ये मनीष जगत रे परमात्मा का संतान हिसाब रे आम समस्त बड़ हेले ब्रह्मा बाबा। कहिए तुमर बड़ भाई
मुरब्बी बच्चा बाबाकर बड़ पुओ तो दादा तो दी जन जाक कंबाइंड अछंती बाप दादा ताको पुणी बाबा अन्य शब्द रे कहंती ब्रह्मा बाबा जे प्रजापिता फादर ऑफ ह्यूमैनिटी मनीष समाज र पिता ब्रह्मा आ तांकर बापा जहाँ को हिंदी रे दादा कहते शिव बाबा उभय आसचंदी बाप दादा। तो हमको माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। कलिजुगर राति सरिला एबे आमे सुवर्ण सत्य युग को जीवा पूर्व से सत्य युगर सकाळ पूर्व संगम र पाहांतिया रे भोर अमृत बेला रे अच्छे तेणु गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूह माने आत्मा रूहानी माने आत्मिक रूहानी बाप की माना आत्मिक बापा माने परमात्मा की रूहानी बच्चों को आत्मा रूपी संतान मानों को नमस्ते। परमात्मा आमको सबुदिन ये मैनर भी ए निरंकारिता आधार रे आसिक नमस्कार कर तो आमे कौन कहवा हम रूहानी बच्चों के भी आमे भी आत्मिक संतान माने से परमात्मा जे सत्य शिक्षक सत्य बाप सियासी की शिक्षा दौरान रूहानी बाप को बा दुई जन जाको मात पिता बाप दादा को याद मन पकेले हृदय भरा स्नेह प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्रत्येक दिन सकाळे भगवान कर महावाक्य बुद्धि को भोजन यदि ए प्रकार सकारात्मक भोजन को आमे सकाळु सकाळु ग्रहण करबा तापर दिन जाकर दिनचर्या ए ब्रह्मा वत्संकर ब्रह्मांकर संतान हेकरी परमात्मा पालना पाइबा आधार ब्राह्म मुहूर्त रे अमृत बेला रे आत्मा निश्चय करी परमात्मा का सह मिलन द्वितीय रे परमात्मा ठारू शिक्षा दिन सूर्य उदय पर गाधी पाधे शिक्षा दिन जाकरे प्रत्येक घंटारे कम से कम गोटे मिनिट निज को आत्मा निश्चय करी परमात्मा को पाखक जीवा आउ जहा भोजन करिबा परमात्मा को अर्पण करी तांकरी स्मृति रे रही करी ए अन्न को भोजन को शुद्ध करी ग्रहण करिबा। त्रिसंध्या से भी गोटे संगम र बेला से समय रे भी परमात्मा का स्मृति रे बसिबा परमात्मा का सह ये संसार र समस्त आत्मा को शक्ति दबा एवं राति रे दिन जाक भितरे आज बाबा कौन शुणीचे मन पकेबा आ राति रे भगवान को सबू कथा जणई दबा शोइबा को जीवा पूर्व तांको पाखरे बसिबा दिन जाकर खबर दबा तांको गोटे चिट्ठी लिखिदबा आज कौन भल कले कौन भूल कले क्षमा मागिबा भल कले जदि आशीर्वाद नबा काली की कौन करी प्लान करिबा तांको कोଳରେ सब रखी निश्चिंत होकरी तांकरी ही कोଳରେ शोई पड़िबा। ए दिनचर्यार परदिन भी भगवान आमको गोटे नुआ सकाळ उठेबे नुआ उमंग दे नुआ शिक्षा देबे एवं आम जीवन को एवं ए समय को सफल करिबार विधि स्वयं भगवान ही बतई दिया। चलतु आम हृदय सहित से भगवान को धन्यवाद करवा जी आम अजाणत भी आमको तांको पाखक नहीं आसी आम जीवन को गोटे बहुत सुंदर जीवन देवता तो पछे हवा किंतु ए समय रे जो घड़ी संधि मुहूर्त चली ए समय रे भी आर सफल करने आम मन बुद्धि को सुदृढ़ करने सकारात्मक भरा जीवन यात्रा रे आगे आमको समर्थ कर हृदय धन्यवाद करवा भगवान को।
स्नेहर सूत्रे आम बुद्धिर तार को स्वयं भगवान बांधि नहीं। परमात्मा को कहवा आम बुद्धिर तार आपणकर ही हाथ में थाओ। जीवन यात्रा रे दिनचर्या भितरे आपण बारंबार मो बुद्धिर तार को आपण पाखक नहीं आसतु। हे परम धाम निवासी बाबा, जेमिति तमे ए साकार दुनिया को आसी मो बुद्धिर द्वार खोली देल, ए कलिजुगी दुनिया रे कर्म व्यस्ततारे थिला बेले मध्य तमे मो पाखक आसीबो। मो बुद्धिर द्वार को विवेकर द्वार को सबु बेले उन्मुक्त रखुथिबो। शिव बाबा, तुमे ही मोर, मु तुमर। ओम शांति।